Hello students, today we are going to read the poem that is When I Set Out for Lioness. Okay, so this is the poem given after the chapter A Visit to Cambridge. Okay, so without wasting time, let's start the poem. A paragraph before you read that paragraph, okay, that given in the book before you read is not given in this uh, PPT. Okay, so I have the book, I'm reading the from the book, and you may see in your book. Okay, so as a young apprentice architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited a Paris to supervise the restoration of a church. Okay, so Thomas Hardy, you already have heard his name once, I think, in the chapter Best Christmas Present of the World. Okay, so in that chapter you heard the name Thomas Hardy, and second time, this is the second time you are hearing the name Thomas Hardy. Okay, so he was a trainee. Okay, he was a trainee architect, and he went to Paris to supervise the restoration of a church. So he went to Paris to look for the to supervise, actually to supervise the construction work and restoration renovation work of the church. Okay, on this return from the Paris, people noticed two things about him. Okay, and when he returned from the Paris, other people were noticed two things in him. First one, a new glow in his eyes and a crumbled piece of paper. First thing was a new glow in his eyes. A different glow was there in his eyes. उनकी आंखों में अलग सी एक यूनिक सा चमक था. ठीक है. And second one was that a crumpled piece of paper sticking out of his coat pocket. और क्या था, एक मुड़ा हुआ पेपर जो है उनके पॉकेट पे हमेशा मिलता रहता था. ठीक है, स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, कोट के पॉकेट में हमेशा चिपका रहता था. दैट पेपर इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफी. ठीक है, एक बायोग्राफी में रिकॉर्डेड है कि वो पेपर क्या था, एक्चुअली पोम था. कंटेन द ड्राफ्ट ऑफ अ पोम, क्या था कि किसी पोम का एक ड्राफ्ट हुआ करता था. You are going to read that very poem inspired by a visit to a place which the poet called Lioness. Okay, so this poem that we are going to read is a poem that is inspired by the visit of some imaginary place that is called Lioness by the poet. The poet called that place is, the place name is Lioness. Okay, so let's start the poem. When I set out for Lioness, when I set out for when I set out for Lioness 100 miles away. So the Lioness, the city, the place was about 100 miles away from his locality. ठीक है, वो 100 miles के दूर पे जब वो गए थे. The rime was on the spray. The rime was on spray means the frost. Rime means, I think I can't write here meaning. Okay, so the rhyme is frost. Okay, the frost on the spray. ठीक है, it was covered by the frost and all, and starlight lit my lonesomeness. ठीक है, lonesomeness means loneliness, एकांत. ठीक है, उसके एकांत को कौन लाइट कर रहा था, कौन प्रकाशित कर रहा था, स्टारलाइट. ठीक है, ओनली स्टारलाइट वाज देयर हु वाज यू कैन से कि मार्गदर्शन करना. ठीक है, उसको जो उसका जो आगे का रास्ता था उसको कौन प्रकाशित कर रहा था, उसके एकांत को कौन मार्गदर्शन कर रहा था, स्टारलाइट. ओके, व्हेन आई सेट आउट फॉर Lioness, और जब मैं Lioness में सेट आउट में, जब मैं वहाँ पे स्टे करने को था Lioness में, तब 100 miles अवे, और कितनी दूरी पे है, अप्रॉक्सीमेट 100 miles अवे की बात है. ठीक है, एक 100 मीलों की दूरी पे जो Lioness है, जब ये वहाँ पे ठहरने क्या सोचने लगा, जब वो विजिट कर किया वहाँ पे, और जब व्हेन आई सेट आउट, ठीक है, जब मैं वहाँ विजिट किया तब की बात है ये, को मेरा रास्ता कौन दिखा रहा था मुझे, स्टारलाइट. ठीक है, व्हाट वुड बी चांस एट Lioness, क्या होने वाला था वहाँ पे. बी चांस मीन्स दैट इज अबाउट टू हैपन, जो वहाँ पे घटित होने वाला था, जो वहाँ पे जो कुछ भी होने वाला था. व्हाट वुड हैव बी चांस एट Lioness while I should sojourn there. Sojourn means stay.
ठीक है, रुकना, ठहरना। व्हेन आई वाइल आई शुड सोज ऑन देयर, वाइल आई शुड स्टे देयर। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट वुड बी चांस एट लॉयनिस, लॉयनिस में क्या होने वाला है। वाइल आई शुड सोज ऑन देयर, जब मैं वहाँ स्टे करूँगा। नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, डस्ट मीन्स देयर, ठीक है, नो प्रॉफिट, किसी पैगंबर के पास ये डेयर नहीं है जो ये डिक्लेयर कर सके कि वहाँ पे क्या होने वाला है, जब मैं वहाँ पे स्टे करूँगा तो वहाँ पे क्या होएगा। नॉर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस, विजार्ड मीन्स जादूगर, ठीक है, नॉर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस, जो उसको कोई जादूगर, ठीक है, जिसके पास लॉट ऑफ, जादूगर मीन्स, विजार्ड मीन्स अ पर्सन दैट इज दैट हु हैविंग द लॉट ऑफ मैजिकल पावर, ठीक है, तो ऐसा कोई विजार्ड भी उसको डिक्लेयर नहीं कर पाएगा, गेस नहीं कर सकता कि वहाँ पे क्या होने वाला है। इट मीन्स क्या सेंस है इस पोएम का, इस लाइन का, कि आपके साथ क्या होने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है, वॉट एवर इज बीइंग डिसाइडेड इन द डेस्टिनी, ठीक है, इन योर लक, डेस्टिनी क्या है आपकी और मंजिल क्या है, और व्हाट इज योर फ्यूचर एंड व्हाट एवर हैज़ बीन डिसाइडेड, ठीक है, डिसाइडेड बाय द गॉड, यू कैन से, कि जो पहले से डिसाइड हो चुका है आपके लक में, नो वन कैन प्रिडिक्ट दैट व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, ठीक है, कि आपके साथ क्या होने वाला है, नो वन कैन predict that, neither prophet nor wizard, okay, what would be chance at Lionis while I should resource on there, वही कह रहा है कि क्या होने वाला है, क्या होगा वहाँ जब मैं वहाँ पे ठहरूंगा, when I should stay there on Lionis, okay, when I came back from Lionis, जब मैं वहाँ से वापस आया, when I came back, जब मैं वहाँ से वापस आया, Lionis से वापस आया, with magic in my eyes, किसके साथ, magic in my eyes, and what kind of magic was that, it was a unique glow, ठीक है, it was a unique glow, a unique shine you can say, ठीक है, चमक थी उसकी आंखों में, वो मैजिक लेकर क्या है, ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज, कह रहा है कि एकदम एक म्यूट और क्या था कि एक सरमाइज था, यू कैन डाउट था, ठीक है, अ म्यूट डाउट कि क्या था ऐसा, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, अ यूनिक साइन, अ यूनिक स्पार्कल, माय आईज वाज स्पार्कलिंग इन अ यूनिक वे, ठीक है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, माय रेडियंस रेयर एंड फैथमलेस, कह रहा रेडियंस, रेडियंस मीन्स चमक, ठीक है, शाइनिंग, रेडियम एंड फैथमलेस मीन्स गहरा, ठीक है, एक माई रेडियंस रेयर एंड फैथमलेस, एंड दैट ब्रिलियंस, जो उसकी आंख में चमक थी, जो शाइन थी उसकी आंख में, दैट रेडियंस वाज रेयर, ठीक है, वाज रेयर एंड क्या था, फैथमलेस था, बहुत ही अनोखा और गहरा था, वो क्या था। When I came back from Lionis with magic in my eyes, ठीक है, और जब मैं वापस आया कहाँ से, लॉयनिस से, और मेरी आंखों में क्या था, एक अजीब सा चमक था, एक मैजिक थी मेरी आंख में, ठीक है, ऑल मार्क्ड विद म्यूट सरमाइज, हियर मीन्स इट वाज नोटिस्ड बाय ऑल अदर्स, ठीक है, एवरीवन नोटिस दैट मैजिक इन हिज आईज, सो ही इज आस्किंग कि व्हाट वाज what magic, when I came back from Lionis with magic in my eyes, no one was able to tell what was happened there in Lionis, so, ठीक है, neither prophet was having the dare to declare, or neither nor wizard had any guess what was happening there, what happened there, okay, with me. So this was the poem written by Thomas Hardy. And the conclusion of the poem is only that ki whatever is being decided to be happen with you in future, no one can predict what is going to be happen, ठीक है, तो इसका कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि क्या होने वाला है आपके साथ, वो ऑलरेडी बीइंग डिसाइडेड, पहले से डिसाइड हो चुका है, और उस चीज़ों के बारे में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होने वाला है, ओके, सो ऑल राइट, थैंक यू।